Good morning, students. आज ਆਪਾਂ chapter second sexual reproduction in flowering plants ਦਾ last topic seed ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ. Seed is the final product of sexual reproduction. Seed contains a embryo. Generally ਗੱਲ ਕਰੀਏ seed ਬਾਰੇ ਤਾਂ seed ਦੇ ਵਿੱਚ seed coats, cotyledons ਤੇ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਐਕਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਸੀਡ ਕੋਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਨਰਲੀ one seed contain two seed coats. Outer seed coat is known as the testa, which is thick, hard, tough, and inner is known as the tegmen, which is papery thin. Both seed coats, testa and tegmen protects the inner side of the seeds. Seeds are of two types. One is the dicot seed, another is the monocot seed. As it clears from the name, those seeds which contains two cotyledons, they are called as the dicot seeds. And those seeds which contain only one cotyledon, it is known as monocot seeds. Cotyledons nutritive tissues हैं जो कि seed ਨੂੰ during germination ਜਦੋਂ plantlet nutritionally independent नहीं हो जाता, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट नहीं करता, उदों तक नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. एम्ब्रियो ग्रो करन तो बाद जो एक छोटा जा प्लांटलेट बन जाता है तब तक वो अपना न्यूट्रिशन कॉटिलेडन्स तो लेंदा है. और कॉटिलेडन्स क्योंकि पार्ट है एम्ब्रियो का, तो यह अपना भोजन एंडोस्पर्म तो लेंदे हैं. तो साडे कोल दो कंडीशंस हो गया कि जदों सीड जर्मीनेट करता है, ड्यूरिंग इट्स जर्मीनेशन एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है या नहीं हो जाता. जे एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, then that seed is called as the non-endospermic seed, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ X albuminous seed. ਪਰ ਕੁਝ ਪਲਾਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡੋਸਪਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, then it is called as the endospermic seed. एंडोस्पर्म तो इलावा सीड दे विच एक होर पार्ट होता है न्यूसेलस. सीड दी जर्मीनेशन दौरान वो न्यूसेलस पूरे का पूरा कंज्यूम हो जाता है, तो वर्ड यूज किया जाता है पेरिस्पर्म. तो सीड इज नोन एज द नॉन पेरिस्पर्मिक सीड. अगर न्यूसेलस के कुछ लेयर्स सीड दे विच रिजर्व फूड मटीरियल के तौर पर प्रेजेंट होन, then seed is called as the perispermic seed. ਜਦੋਂ सीड मैच्योर ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਿਊਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਿਕ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना शुरू कर देती है, बिकॉज सीड की है एक फर्टिलाइज अब्यूल है. तो अब्यूल वाली सारिया स्ट्रक्चर्स सीड दे विच सानू दिखाई देणगीਆਂ, जिस तरह माइक्रोपाइल है. माइक्रोपाइल सीड दे विच एक पोर दे तौर पे उस तरह ही प्रेजेंट होंदा है, और जदों सीड जर्मीनेट करता है उस टाइम के उपर एंट्री ऑफ वाटर एंड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन को फैसिलिटेट करता है. ऑक्सीजन ते वाटर प्रोवाइड करता है ताकि एम्ब्रियो ग्रो करना शुरू कर दे, जर्मीनेट करना शुरू कर दे. पर जो सीड मैच्योर होंदा है
ਇੰਟੈਂਗੂਮੈਂਟਸ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੀਡ ਕੋਡ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਸੀਡ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੀਡ ਇੱਕ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਹੈਵ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਆਫ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਈਅਰਸ। ਰੀਸੈਂਟ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2000 ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਡ ਮਿਲੇ ਫੋਨਿਕਸ ਦੇ, ਡੇਟ ਪਾਮ ਦੇ, ਖੰਜੂਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਲੈਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰਮੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो जी ये एबिलिटी हैगी टू ग्रो आफ्टर डॉर्मेंसी, दैट इज कॉल्ड एज द वायबिलिटी। सो वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द सीड टू ग्रो आफ्टर द डॉर्मेंसी। और ये अलग अलग होंदी है जिवें कि मैं तुहानूं हुण एग्जांपल्स दे विच दस्सिया है। ज्यों ज्यों अब्यूल पकदे है ओवरी भी साइमल्टेनियसली ग्रो करदी है, मैच्योर होंदी है, and ripened ovary is called fruit। जो fruits सिर्फ ओवरी तो बनते हैं they are called as the true fruits। यू कार भी असी उसनों कह देने हैं, यू कार। पर कुछ फ्रूट्स इस तरह के हैगे जिहड़े ओवरी तो अलावा कुछ होर फ्लोरल पार्ट्स भी नाल ग्रो करन तो बाद बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एप्पल। एप्पल ये सेंटर वाला पार्ट ओवरी है विच कंटेन्स द सीड, और ये वाला पार्ट एडिबल पार्ट जिसको ਅਸੀਂ खाने हैं दैट इज मेड अप ऑफ द थैलेमस। दैट्स व्हाई एप्पल इज कॉल्ड एज द फॉल्स फ्रूट। पीयर भी एक एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट। कुछ फ्रूट्स इस तरह के भी हैगे ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਾਊਟ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ बनते हैं they are called as the parthenocarpic fruits। those fruits which are formed without fertilization they are known as the parthenocarpic। during fruit formation ovary की जो wall है बन जाती है, that is known as the pericarp। और on the basis of structure of the pericarp फ्रूट्स को ਅਸੀਂ दो कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर ਦਿੰਦੇ हैं। वन इज नोन एज द ਸਕੂਲੈਂਟ और फ्लैशी फ्रूट्स। ਜਦੋਂ ਪੈਰੀਕਾਰਪ ਐਡੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਯੋਗ ਹੋਵੇ, then that type of fruits are called as the succulent fruits। सेकंड टाइप है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ਸਾਡੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ड्राई fruits are those fruits in which pericarp is dry, hard, leathery। तुसी हैरान होंगे ये गल सुन के कि लीची इज ए ड्राई फ्रूट बिकॉज लीची की जी आउटर वॉल है पेरिकार्प है वो लैदरी है, हार्ड है। तो एक लेमैन के लिए काजू बादाम ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, बट साडे लिए बायोलॉजिस्ट के लिए अपने को ड्राई फ्रूट्स वो ड्राई फ्रूट्स होंगे जिन्हों की पेरिकार्प की होंगी है हार्ड होएगी और लैदरी होएगी। दैट इज नोन एज द ड्राई फ्रूट। जिस तरह कि मैं तुहानूं पहला दस्सिया कि सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। डाइकॉट दे विच सीड दे विच कॉटिलेडन्स हैगे और सेंटर दे विच एम्ब्रोएक्सिस प्रेजेंट होंदी है। एम्ब्रोएक्सिस दे विच दो कॉटिलेडन्स है और जिथे कॉटिलेडन्स अटैच हैगे
they are known as the cotyledonary node. ਕੋਟਿਲਰੀ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਐਪੀਕਲ ਮੈਰਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੂਟ ਟਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੂਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਿਲਰੀ ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਪੋਕੋਟਾਈਲ, ਔਰ ਕੋਟਿਲਰੀ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਕੋਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, दैट इज द रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म। दूसरी साइड के उपर अगर मोनोकॉट सीड की गल करते हैं, मक्की का दाने की गल करते हैं, मेज, ये एक ही कोटिलेडन होंदा है और ये एक स्पैशल नाम है दैट इज कॉल्ड एज द स्कूटेलम। और ये एक होर खास गल है, यदि एम्ब्रियो एक्सिस दे विच जो साडे कोल शूट एपिकल मेरिस्टम या रूट टिप हैगी है दैट इज कवर्ड बाय द शीट्स, वो कवरिंग दे नाल कवर होई होंदी है। जो शीट्स शूट टिप ਨੂੰ कवर करती है दैट इज नोन एज द कॉलियोपेटाइल, और जो रूट टिप ਨੂੰ कवर करती हैगी दैट इज कॉल्ड एज द कॉलियोरहाइजा। और इथे एक वड्डा सारा एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट है इन द केस ऑफ मेज। वैसे तो सानू पता है कि सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट कुछ फैमिलीज हैगियां जिवें एस्ट्रेसी ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, दैट इज नोन एज द एपोमिक्सिस। अगर शब्द की ਅਸੀਂ मीनिंग्स देखिए, एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिंग मीन्स मैरिज। ਇੱਥੇ मैरिज वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? फर्टिलाइजेशन के लिए। एपोमिक्सिस की है बिना फर्टिलाइजेशन तो सीड प्रोड्यूस करना है, इट मींस इट्स द asexual reproduction which mimics with the sexual reproduction। sexual reproduction की तरह नकल होंदी है बट asexual reproduction है। आजकल तुसी देखा होगा अखबारां विच पढ़दे हैं, असी टीवी दे ऊपर देखते हैं, जिहड़े फार्मर्स है दे आर कंटिन्यूअसली यूजिंग हाइब्रिड सीड्स। हाइब्रिड सीड्स ने फूड की वैजीटेबल की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिता है। नो डाउट हाइब्रिड्स बहुत ही यूजफुल है फार्मर्स के लिए, बट हाइब्रिड्स के सीड्स को असी बार बार नहीं यूज कर सकते। जे एक बारी हाइब्रिड्स असी सो कीते है, जो उन्होंने प्रोगीनी होएगी, उन्होंने ऑफस्प्रिंग्स होणगे, मीनस उन्होंने सीड्स होणगे, अगर असी नैक्सट सीजन उसनू ग्रो करवावांगे तो उनके करैक्टर्स सेम नहीं रहणगे, सैग्रीगेट हो जाएंगे। पर जे असी एपोमिक्सिस दे राही हाइब्रिड्स बनावांगे तो असी बार बार अगर असी उन्हें यूज करांगे तो उनके करैक्टर्स सैग्रीगेट नहीं करेंगे, वो सेम रहेंगे। बट जिहड़े हाइब्रिड सीड्स है क्योंकि हर साल बनाने पैंदे, formation of hybrid means hybridization is very costly process। अगर एक कॉस्टली प्रोसेस है तो फार्मर्स के लिए वो सीड खरीदना भी बड़ा कॉस्टली होएगा। और क्योंकि साडी इकनॉमिक प्रोग्रेस दे विच हेल्पफुल है तो पूरे वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट है वो अपने अपने देशों के विच अपने अपनी लैबोरेटरी के विच एक्सपैरीमेंट करन लगे है कि किस तरह असी एपोमिक्सिस की जेनेटिक नू समझ सकीए और उन्होंने जीन्स नू एपोमिक्सिस दे राही हाइब्रिड दे विच पा सकीए, ताकि सानू हर साल बार बार हाइब्रिड्स ना बनाने पैन, तो असी एपोमिक्सिस दे राही प्रोड्यूस किए सीड्स नू डिजायर्ड करैक्टर्स दे राही ग्रो करवा सकीए। डियर स्टूडेंट्स, मैनूं उम्मीद है कि जो लास्ट वाला जो टॉपिक सी है तुहानूं इस चैप्टर का बड़ा ईजी लग्या होएगा। साडी इकनॉमिक सोशल इंपॉर्टेंस होने करके बड़ा इंटरस्टिंग भी सीगा। उम्मीद है कि तुहानूं ये बहुत पसंद आया होएगा और ये पूरे चैप्टर में तुसीं रिवाइज करके देखोगे। अगर किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुसीं मेरे कमेंट बॉक्स से आके मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।